Honorable Minister of Science and Technology, Earth Sciences, Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan Ji, who has been our great patron and also the Vice President of CSIR. Very hearty welcome, sir, to today's function. We are looking forward you to release the technology compendium of CSIR that we have prepared for COVID-19 technologies. We have all the directors who have joined on video. And just to mention, sir, 3 directors have taken over very recently. CSIO Chandigarh, Professor Anant Ramakrishna. He has come from IIT Kanpur and has taken over to. Then Dr. Pancharia of Siri Pilani and Dr. Srinivas Reddy of IIM Jammu. These 3 people have taken over in last 15 days. I was hoping that they would come on video, but if not, as you are aware, we started our work in the last week of March on this. And the compendium looks something like this. There are 30 laboratories which are involved and about 100 plus technologies we have done. So you are aware that we worked on 5 different verticals. I have told you about this. And all the verticals 1, 1, 2, 2 technologies have come together, making it about the same. So one of the verticals is this diagnostics, in which we have created number of diagnostic kits. One of the first ones is this Feluda, which will be commercialized by Tata Sons very soon. It is undergoing regulatory approvals right now. And the other one is RT Lamp. This is also undergoing regulatory approvals right now and is being commercialized by Reliance Industries. So it will be a paradigm shift in diagnosis in the country as far as the diagnosis is concerned. So in terms of the drugs and vaccines, we synthesized favipiravir and we gave it to Cipla for making the process of favipiravir. And as you are aware, sir, DCGI has given permission, restricted emergency use, to favipiravir, and the cost that was being projected by other companies was about 100 rupees. Cipla has already started marketing it for 60 rupees. So immediately after we gave our process, very efficient process to them, the cost of favipiravir has come down dramatically. So in terms of hospital devices, NAL has made this ventilator, what is called as a BiPAP ventilator, that is undergoing right now regulatory approvals once again in different hospitals. So that is going on. So this one is already in the field, oxygen enrichment unit, made by National Chemical Laboratory Pune, and number of hospitals in Pune are already using this particular oxygen enrichment unit. Similarly, this is a electrospray disinfection unit that is made in CSIO Chandigarh, and number of companies have already started selling it. Big companies like BHL and also some of the MSMEs, they actually took it from us and making it. So we have a technology for makeshift hospitals, and we are bidding in different cities in the country. In Pune, for example, right now, where they have a need for makeshift hospitals, and we are going with along with some partners who have done that. So apart from that, we have made many other small technologies that you are aware of. PPEs were made, masks and face shields, disinfectants, and things like that. So the last vertical that we have is that on supply chain logistics, and we have made a web server on which we connect the buyers and suppliers together. And wherever there is a need in any corner of the country for any particular item, this app actually helps them. And the app is based on the Kisan Sabha app that CRRI made to connect farmers with the truckers, the transport owners. And this app already has more than 50,000, more than 60,000 people have registered on this. And all the farmers in the country are now connected with the transporters of the truckers and all, and they're finding it very useful. And the Google Play rating of this is more than 4.2. It's one of the highest in this category of apps. So it is a very useful app, and our Arogya Setu app is based on this particular platform. So we are hoping that this also will be very useful for people to connect. Apart from this, there are many other technologies. We have ready to eat food which is protein rich. We have given it to many hospitals, including AIIMS Delhi and PGI Chandigarh and all. And there are many other things that we have written in that. The compendium contains the contacts of the industry. So if anybody wants to buy this, they can contact the industry directly. Or it also contains CSIR laboratory contacts, who has developed it, so that if anyone is interested in commercializing that, we can do that. And this is my last slide, sir. So the portal is there, we have hosted a portal, and we are also, with your suggestion, we are going to MyGov, and we are also requesting MyGov to host it on their website. So we can show the portal, so just one, this thing is, and the portal gives everything, even how, which lab they can join, which technology, which industry. If somebody else would like to have that technology additional from us, so all of them can contact us on this particular. So may I request you to. CSIR के DG
डॉक्टर शेखर मांडे जी, CSIR के सभी वरिष्ठ अधिकारी जो आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और इसके साथ साथ देश की सभी हमारी CSIR की प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्रीज़ जिनकी संख्या 38 है, उनके सभी डायरेक्टर्स और वरिष्ठ अधिकारी भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का कार्यक्रम बहुत ही भले ही छोटा है देखने में, लेकिन वास्तव में इस छोटे कार्यक्रम को भी इस स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों की देश भर में थोड़े ही समय में बहुत सारी मेहनत लगी है। हम जानते हैं कि कोविड का पहला केस भारत में 30 जनवरी को आया था, और उसके बाद से लगातार अभी आज पूरा 6 महीना हो गया है। एग्जैक्टली 6 महीने के बाद भी हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 6 महीने के बाद इतना ज़रूर हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि सारी दुनिया के हर देश से शायद हम लोगों ने इतना बड़ा देश होते हुए भी, जिसकी 1.35 बिलियन पॉपुलेशन है, 135 करोड़, औपचारिक 135 करोड़, शायद वास्तविक इससे भी ज़्यादा होगी, हमने उस देश में सब प्रकार से कोविड के खिलाफ जंग को देश के कोने कोने में बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों ने लड़ा है। और उसका परिणाम ये है कि आज दुनिया में सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट 64% से ज़्यादा और सबसे कम फैटेलिटी रेट 2.2% के करीब भारत का है। एक लेबॉर्ट्री से शुरू की हुई यात्रा को हम 1300 से ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ तक पहुंचा चुके हैं, जहां कोविड के ख़िलाफ़ टेस्टिंग होती है। और इस सारे काम में सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिक्स ने तो जो अस्पतालों में कोविड के मरीज़ों के लिए सेवा की, चिंता की, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसको शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल है। लेकिन उनके साथ साथ कोरोना वॉरियर्स बनकर हमारे वैज्ञानिकों ने भी उनके इस जंग में सफलता अर्जित करने के लिए सब प्रकार का सहयोग किया। मैं CSIR के वैज्ञानिकों को आज के इस अवसर पर इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि थोड़े से समय में, शायद 3 महीने के समय में, हम लोगों ने पहली मीटिंग जब की थी, मुझे ध्यान है कि फरवरी या मार्च के महीने में, और सब वैज्ञानिकों को हमने कहा कि आप बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, और लंबा समय करने के बाद उसके नतीजे निकलते हैं जो आप इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को पहुंचाते हैं। लेकिन कोविड के खिलाफ जो जंग है, इसमें हम लंबी इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको जो कुछ भी करना है, अपनी योग्यता का, अपनी ताकत का, अपने साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन का, इन सब बातों का आप जो परिचय है, अगले कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों के अंदर हमको दीजिए। और आज मुझे खुशी है कि अभी एक कॉम्पेंडियम को मुझे रिलीज़ करने का सौभाग्य मिलेगा, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ जो पिछले 3 महीने के अंदर और विविध क्षेत्र जो कोविड के खिलाफ जंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में उनको साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजीज़ को विकसित कर लिया। विकसित करने के बाद 93 इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर लिया। और जब मैं देख रहा था इस कार्यक्रम में आने से पहले, लिस्ट तो बड़े बड़े देश की इंडस्ट्रीज़, कोई रिलायंस की इंडस्ट्री है, कोई टाटा सन्स है, कोई BHEL है, कोई BEL है, और बहुत सारे MSMEs, ये सारे लोग इसके अंदर हमारे जुड़ गए हैं।
और जिस भी चीज़ की आवश्यकता थी, जब शुरुआती दौर में मीटिंग हुई तो NAL ने कहा कि हम एक नया बाईपैप वेंटिलेटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने सोचा ये तो हवाई जहाज़ वगैरह बनाते हैं और अभी ये वेंटिलेटर में कहाँ लग गए, लेकिन बाईपैप वेंटिलेटर जो है विशेष रूप का बना दिया। हैदराबाद के लोगों ने कहा कि हम नई दवा की खोज में भी लगेंगे और पुरानी दवाएं जो है उनको रीपर्पस करके कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी देखिए कितनी बड़ी बात बताई गई कि फेविपिरावीर जो दवा है, जो गोली 100 रुपये की आती थी, उसको बनाने की नई टेक्निक हमारी लेबॉर्ट्री ने पैदा कर दी। उस टेक्निक को नई एक सिप्ला नाम की इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र कर दिया और उसके कारण देश की जनता के लिए वो दवाई लगभग 40% कम दाम के ऊपर उपलब्ध होनी शुरू हो गई। जहां देखा कि देश में यद्यपि 13-14 हज़ार डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, कोविड हेल्थ सेंटर्स, कोविड के केयर सेंटर्स बने हैं, जिनमें 14 लाख के करीब बेड्स वगैरह उपलब्ध कराए गए सारे देश में अलग अलग प्रकार के। लेकिन जब एक समय पर बात आई कि शायद बीमारी और बढ़ेगी और बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इतनी जल्दी अस्पताल, क्योंकि कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल चाहिए, डेडिकेटेड बेड चाहिए, कोविड और नॉन कोविड को सेपरेट करना है, तो हमारे CSIR ने वो एकदम जिसे कहते हैं मिनटों में और दिनों के अंदर बड़े अस्पताल खड़ा करने वाली टेक्नोलॉजी जो है उसको विकसित करके दिखा दिया। जहां वायरस का अध्ययन करने का विषय आया तो भारत जो है वो उन 5 देशों के अंदर है जो वायरस को आइसोलेट कर पाया। और अभी हमने देखा कि CSIR में भी, बायोटेक्नोलॉजी में भी 1000 से ज़्यादा वायरसेस की जो है वो डिटेल्ड जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। चाहे कोई सैनिटाइज करने के लिए लेटेस्ट कोई इक्विपमेंट्स बनाने की बात हो, चाहे कोई लेटेस्ट किस्म के PPEs बनाने की बात हो, N95 मास्क बनाने की बात हो, यानी जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, लगा कि कोई ऑक्सीजन एनरिचमेंट के लिए कोई स्पेशल लेटेस्ट कोई मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई डिवाइस बनाना है, तो वो भी बनाकर दिखा दिया। और फिर बहुत सारी जो किट्स की बात की गई है अभी, फलूदा और दूसरी जो एकदम बहुत जल्दी रिज़ल्ट्स दें, RT-PCR टेस्ट को भी उसके तरह के रिज़ल्ट्स भी और ज़्यादा जल्दी उनके नतीजे जो है उपलब्ध कराए जा सके, उसके लिए टेक्नोलॉजी का रिवीजन, नई नई किट्स को बनाने के बारे में। और फिर खाली यही नहीं, जब जिस समय ज़रूरत पड़ी कि भाई जो ICMR की लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें जितना टेस्टिंग हो रहा है, उस टेस्टिंग को करने के लिए हमें हमारी लेबॉर्ट्रीज़ को भी सप्लीमेंट करने के लिए लगाना है। तो उसके अंदर भी देश के अंदर कई स्थानों पर रिसर्च के साथ साथ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है एक प्रकार से जो जांच का जो काम है वो भी हमारी लेबॉर्ट्रीज़ ने किया। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अप्रैल के महीने में हम शायद 6000 टेस्ट रोज़ करते थे, और जब 6000 रोज़ टेस्ट करते थे उस समय पर भी सारे देश में हर टीवी चैनल पर सब जगह एक ही बात हमसे पूछी जाती थी, इतना बड़ा देश, इतने कम टेस्ट 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 टेस्ट, यही बात सब लोग करते थे अपने। लेकिन आज जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हर रोज़ हम कर रहे हैं भारत के अंदर। और अभी कुछ ही हफ्तों के अंदर, अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर इस कैपेसिटी को 10 लाख तक लेकर जाने की हमारी योजना है। उसके लिए हमारे लोग सारे देश के अंदर काम कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शायद इतनी सारी, क्योंकि अब ये 100 टेक्नोलॉजीज़ का विवरण तो यहाँ पर जो है इस संक्षिप्त भाषण या कार्यक्रम में नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ को एक कंपेंडियम के माध्यम से
और फिर पोर्टल बनाकर भी उसको सारी चीज़ों को एक स्थान पर हमने उपलब्ध करा दिया है। हमने ऐसे ऐप बना दिए हैं जिसके माध्यम से किसानों को जो है मदद मिल रही है। हमने ऐसा ऐप बना दिया जिसके माध्यम से एक ही स्थान पर हम सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए कहाँ इंडस्ट्री के माध्यम से किसके साथ कनेक्ट करना है। और CSIR का हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि वो जो भी काम करती है, वो जो भी रिसर्च करती है, वो देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता की तकलीफ़ को दूर करने के लिए। उसमें उसका लक्ष्य ये नहीं होता कि वैज्ञानिक ने रिसर्च करके कोई टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसको समाज तक पहुंचाने के लिए कोई हमें पैसा कमाना है। वो रॉयल्टी जो होती है वो भी बहुत ही एक तरह से नोशनल और या सिंबॉलिक रॉयल्टी होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं CSIR का बहुत गौरवशाली इतिहास है। वो अपने जीवन के 75 वर्ष, अभी भारत की आज़ादी के बाद जो है अभी हमारे 75 वर्ष जो है वो 2022 में पूरे होने हैं, जब एक नया भारत प्रधानमंत्री जी देश को डिलीवर करना चाहते हैं। लेकिन CSIR की प्लैटिनम जुबली हो चुकी है, क्योंकि उसका जन्म जो है वो 1942 में भारत के आज़ाद होने से पहले हो गया था। और हम सबको याद है कि हमारी प्लैटिनम जुबली पर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर भारत के सभी वैज्ञानिकों को अपना आशीर्वाद दिया था। मैं हर एक टेक्नोलॉजी की तो आज यहाँ चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन सब विषयों पर जो कोविड के खिलाफ जंग से जुड़े हैं, छोटे से छोटी बात से लेकर बड़े से बड़ी बात, छोटे से छोटे पहलू से लेकर बड़े से बड़ा पहलू, और पूरे वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे CSIR के वैज्ञानिकों ने काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंपेंडियम है, ये देश के लोगों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए भी, दूसरे यंग वैज्ञानिकों के लिए, कि समय पर आवश्यकता के हिसाब से कैसे अपने फोकस को चेंज करके और अपने माइंड का पूरा एप्लीकेशन करके हम देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे हम देश को सहायता कर सकते हैं। इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण ये कोविड के खिलाफ जंग है, जिसमें साइंटिस्ट ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण तो PPE किट्स हैं। एक भी हम भारत में नहीं बनाते थे, और आज 5 लाख हम जो है बना रहे हैं रोज़। वेंटिलेटर जो है बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, आज शायद 3 लाख वेंटिलेटर हर साल बनाने की हमारी क्षमता विकसित हो गई है। अधिकांश वेंटिलेटर जो है वो भारत में बनाकर हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही जो N95 मास्क के संदर्भ में है, दवा के संदर्भ में तो हम पहले ही दुनिया के अंदर लीडर हैं। जो APIs वगैरह है, दूसरी चीज़ें हैं, उनके साथ जितने भी जुड़े हुए संबंधित काम हैं, उन सब में हमारे भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की है, नेतृत्व दिखाया है। और अभी इसके साथ साथ जो है, जो वैक्सीन की खोज की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें भी भारत के वैज्ञानिक, डॉक्टर, सब लोग मिलकर एकदम दुनिया में किसी से हम पीछे नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है कि दुनिया में 200 वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां पर जो वैक्सीन की खोज में जो लड़ाई है वो क्लिनिकल ट्रायल्स तक पहुंच गई है। उसमें कोई एक ऑक्सफोर्ड में हो रहा है जिसके ट्रायल ब्राज़ील में हो रहे हैं, कोई एक चाइना में हो रहा है। तो हम भी किसी से पीछे नहीं है। हमारे भारत के अंदर भी हमारी भारत की 2 अपनी कंपनियां और हमारे वैज्ञानिक मिलकर जो है वैक्सीन की खोज में क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टेज में पहुंच गए हैं। तो बहुत हम सब के लिए ये खुशी की बात है। आज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवा जो है वो शायद दुनिया के लगभग
150 देशों को हम लोग भेज रहे हैं। अभी हमारी कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर हम लोग दोबारा से उसमें एक प्रेजेंटेशन इस बात पर करवाने वाले हैं कि अभी हम दोबारा इस स्थिति में आ गए हैं कि हमने शुरुआती दौर में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया था कि हमें हर चीज़ भारत में ही रखनी है कि हमारे देश के लोगों को कम ना पड़ जाए। अभी हम उसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा ये करने वाले हैं कि हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में चीज़ें हैं तो अभी हम क्या क्या चीज़ों का एक्सपोर्ट खोल सकते हैं ताकि हम दुनिया के लोगों को भी और ज़्यादा बेहतर ढंग से मदद कर पाएँ। तो मैं सभी वैज्ञानिकों को, CSIR को आज बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ, लेकिन हम हमारे काम के अंदर उसी प्रगति के साथ, उसी गति के साथ जो है आगे बढ़ते रहें। इस बात की भी मैं आपसे अपील करता हूँ। ये कोविड जो है वो नया वायरस है, ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यद्यपि हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय के अंदर इसकी गति धीरे धीरे कर थमेगी और भारत ने इसकी गति को थाम कर रखने के लिए बहुत ही जटिल प्रयास किए हैं। अगर 14-15 लाख केसेस भारत में हुए हैं तो 10 लाख के करीब 1 मिलियन केसेस ठीक होकर घर पे भी चले गए हैं और अधिकांश जो अस्पताल में या कहीं पर भी किसी क्वारंटाइन सेंटर में है वो भी मेजॉरिटी ठीक होकर ऑन रोड टू रिकवरी हैं। तो हम मरीज़ों की सहायता के लिए और देश के आने वाले समय में कोविड के ख़िलाफ़ जंग के इतिहास में अपने ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन को दर्ज कराने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करते रहें। इसी विश्वास और शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और डॉक्टर शेखर मांडे साहब को, सभी DGs को, सभी वैज्ञानिकों को, सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत और ख़ासकर मीडिया के साथियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि पूरे कोविड के ख़िलाफ़ जंग में खतरे को साथ में लेकर वो अपने कैमरे के साथ हमारे साथ रहे पूरे टाइम। मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे जो मीडिया के भाई हैं वो बीमार भी हुए हैं, कोविड के कारण परेशान भी हुए हैं। कुछ एक ऐसे उदाहरण भी हैं जहां बहुत लोगों के प्राण भी न्यौछावर हो गए हैं कोविड के ख़िलाफ़ जंग में। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारे जो कंट्रीब्यूशंस हैं देश और समाज कभी भूलेगा नहीं और कोविड वॉरियर्स के रूप में जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका इतिहास के अंदर एक प्रकार से पॉजिटिव ढंग से हमेशा के लिए नाम याद रखा जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। सारी टीम भी आ जाओ।